Welcome back, students. We are reading the play Mother's Day written by J.B. Priestley. The play begins with two friends having a candid conversation at Mrs. Pearson's house. Mrs. Fitzgerald is telling Mrs. Pearson's fortune and she advises her on it. Mrs. Pearson, she goes about telling about how her family members don't value her and don't appreciate whatever she does for them. She's available for them 24/7, and what they all do is that they come in, they just give orders around at her, and then they leave without even saying thank you to her. Mrs. Fitzgerald, she tells her to take a stand as the woman of the house, the boss of the house, and thus she tells her to assert her personality over the family members. But Mrs. Pearson, being the sweet and innocent lady, she doesn't want to bring her family any sort of discomfort, any sort of unpleasantness. She continues to handle their tantrums because she doesn't know where to begin when it comes to making them disciplined. So Mrs. Fitzgerald, she tells her when it is time for Mrs. Pearson to go back and prepare tea for her family members, it is then that Mrs. Fitzgerald, she tells them that it is the right moment to start. So students, we will start from that part where Mrs. Fitzgerald is found suggesting Mrs. Pearson that she should let them prepare their own tea, and thus she should start from there. And when she says, "This is where your foot goes down, start now." So she lights a cigarette from the one she has just finished. Mrs. Pearson, she's little embarrassed at the suggestion. Mrs. Fitzgerald, she says, "I know you mean well, in fact." वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे भले के बारे में ही सोच रही हैं. In fact, I agree with you, but I just can't. वो कहती हैं कि I certainly agree with you, whatever suggestion that you are giving me, but at the moment, I just can't do. And she says, it is no use you trying to make me. So वो कहती हैं कि it will be of no use the way you are trying to force me or you are trying to advise me. She also further says, if I promise you I would really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. So when Mrs. Fitzgerald, she actually makes her understand that it is high time now, and that was the right moment when the family members they were about to arrive in the house, and she should let them prepare their own tea. But Mrs. Pearson, she is still not comfortable with Mrs. Fitzgerald's advice, and she says that she is not in a position to follow her suggestion, and she also says that ki, she would not be able to fulfill the promise even if she makes one. And then Mrs. Fitzgerald said that, then let me do it. Now, at the moment when Mrs. Fitzgerald she sees the helplessness of Mrs. Pearson, she comes forward to help her. वो कहती हैं कि तो मुझे करने दो, अगर आप ये काम नहीं कर सकते हो तो ये काम अब मुझे करने दो. Thus she asks Mrs. Pearson to let her do the hard part and teach Mrs. Pearson's family a lesson. मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड. मिसेस पियर्सन जो हैं इस वक्त थोड़ा सा अपसेट होती हैं, वो घबरा जाती हैं और कहती हैं, ओ नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जराल्ड, बट दैट wouldn't do at all. It couldn't possibly be somebody else. They would resent it at once and would not listen. वो थोड़ा सा एजिटेटेड हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं. रिजेंट मीन्स दे विल फील बिटर, उन्हें गुस्सा आ सकता है, दे वुड नॉट वेलकम. सो मिसेस पियर्सन जो हैं वो कहती हैं कि आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया, कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं how their her family members are going to react with the changed behavior, and वो इस तरह की बातों को वेलकम नहीं करेंगे where a person an outsider is interfering in their family matters, so they would definitely resent it. एंड वो कहती हैं कि दे वुड नॉट लिसन, वो आपकी बात सुनना भी नहीं चाहेंगे. एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम. वो कहती है कि मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकती हूँ. आई नो आई ऑट टू डू इट, बट यू सी हाउ इट इज.
वो ये कहती हैं कि यस, मुझे पता है कि ये काम मुझे करना चाहिए, सिचुएशन क्या है उस हिसाब से मुझे अपने हक के लिए आगे बढ़ना चाहिए, फैमिली को उनको डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है। लेकिन वो कहती हैं कि आई एम हेल्पलेस, एंड शी लुक्स apologetically across the table, smiling rather miserably. सो वो हेल्पलेस है, दैट वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं इस बार, और वो सिर्फ एक स्माइल चेहरे पर ले आती हैं जिसमें उनकी हेल्पलेसनेस बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं. बट मिसेस फिट्जराल्ड कूलली इन अ वेरी काम मैनर शी सेज, यू हैवंट गॉट द आइडिया, कि तुम्हें मेरा जो बात है वो पूरी तरह से समझ ही नहीं आई है. यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Mrs. Pearson bewildered. She's little confused. Oh, I'm sorry. I thought you asked me to let you do it. सो मिसेस पियर्सन जो है थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि फिट्जराल्ड जो है वो क्या कहना चाहती हैं. वो कहती हैं कि मुझे लगा कि आप मेरी जगह जाकर मेरे फैमिली मेंबर्स से बात करना चाहती हो. एंड शी सेज दैट मुझे लगा, आई थॉट दैट यू वांटेड टू टेक माय प्लेस इन द हाउस एंड talk to the family members. Mrs. Fitzgerald, she says, I did, but not as me, as you. कि यस, आप जो सोच रही हो वो बिल्कुल सही है, मैं आपकी जगह लेना चाह रही हूँ, लेकिन नॉट एज मी बट एज यू. मैं मिसेस फिट्जराल्ड बनकर नहीं, मैं मिसेस पियर्सन बनकर उनसे बात करूंगी. और जो मिसेस पियर्सन है उन्हें फिट्जराल्ड की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती हैं. वो कहती हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन बी मी. और वो कहती हैं कि of course, if you want to go and talk to my family members, you cannot be me. You have to talk to them as Mrs. Fitzgerald. और आप पियर्सन बन के कैसे बात कर सकते हो. और Fitzgerald again in a very calm and cool manner she says, we change places, or really bodies. You look like me, I look like you. So here comes the real suggestion, the real idea, where we find मिसेस फिट्जराल्ड किस तरह से वो एक आइडिया लेकर आती हैं that they were going to change places. That means they were going to switch bodies and change their bodies, change, and thus Mrs. Fitzgerald would become Mrs. Pearson and she would go and talk to the family members. The family members, they would not even come to know that who they are talking to. And Mrs. Pearson says, that's impossible. Mrs. Fitzgerald, how do you know? Ever tried it? और इस तरह से मिसेस फिट्जराल्ड की बातें सुनकर पियर्सन हैरान है. वो कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है. मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि तुम्हें कैसे पता, कभी कोशिश भी की है ऐसा करने की. पियर्सन कहती है, नो ऑफ कोर्स नॉट. मिसेस फिट्जराल्ड सेज कूलली अगेन, आई हैव, नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क. सो कहती हैं कि हाँ, कुछ काफी समय हो गया है, आई हैव नॉट ट्राइड दिस, बट यस ऑफ कोर्स दिस trick is definitely going to work. Won't last long, but long enough for what we want to do. और वो ये भी कहती हैं कि of course this change of bodies will not remain for long time, but the sufficient time they are going to get for the purpose that they want to do. सो वो क्या समझाती हैं कि डोंट वरी, जो भी हम करने वाले हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन इतना समय ज़रूर मिल जाएगा कि हम वो कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं. Learned it out east, of course, where they are up to all these tricks. और मिसेस फिट्जराल्ड वो बताती हैं पियर्सन को कि ये ट्रिक भी उन्होंने ईस्ट ईस्टर्न साइड ऑफ लंदन में जब वो रह रही थी वो वहां से उन्होंने सीखी थी. एंड दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, कि वहां पर लोग इस तरह की ट्रिक्स काफी सीखते हैं, करते हैं. मिसेस पियर्सन जो अभी भी डाउटफुल हैं वो कहती हैं, वेल आई डोंट नो इज इट राइट. और जब मिसेस फिट्जराल्ड जो हैं वापस से सिगरेट अपने मुंह में लेकर उनसे कहती हैं, गिव मी योर हैंड्स डियर, मिसेस पियर्सन थोड़ा कंफ्यूज हैं कि ये करना सही होगा या नहीं. Mrs. Fitzgerald, it is your only chance. Give me your hands and keep quiet a minute. Just don't think about anything. So वो उसे समझाती है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है. And she was aware of her situation very well, and she said that she has no other option. And she asks her to give her hand. She holds her hand and she mutters something like, they stare at each other. Mrs. Fitzgerald, she starts muttering, Ashtata dum, Ashtata lam, Ashtata lam dum mana.
So this way, she actually utters a spell, a magical spell. So what happens after this? This little scene should be acted very carefully. We are to assume that the personalities change bodies after the spell has been spoken. Both women, still grasping hands, go lax as if the life were out of them. Then both come to life, but with the personality of each other. Each must try to adopt the voice and mannerisms of the other. So now, Mrs. Pearson is bold and dominating, and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttering. सो अब क्या होता है, जैसे ये मैजिक स्पेल पढ़ा जाता है, दोनों की जो सोल है वो एक दूसरे की बॉडी में चली जाती हैं. सो दे इंटरचेंज देयर बॉडीज एंड दस जो स्पेल है बहुत ही खूबसूरती से काम कर जाता है. और हम क्या देखते हैं, द सीन जो है ऑथर कहते हैं इसे बहुत अच्छी तरह से इनैक्ट करने की ज़रूरत है. क्लियरली द ऑडियंस शुड सी टू इट दैट हाउ देर इज़ अ चेंज इन द बिहेवियर एंड वॉइस ऑफ द पर्सनालिटीज. सो अब जो है मिसेस फिट्जजेराल्ड वो पियर्सन की पर्सनालिटी के साथ है, और मिसेस पियर्सन की जो बॉडी है वो फिट्जजेराल्ड की पर्सनालिटी के साथ है. So whenever you write answers, when this you take the answers from this part of the story, somewhere in your answer you must mention that Mrs. Fitzgerald with Pearson's personality and Mrs. Pearson with Fitzgerald's personality, right? This thing has to be clearly mentioned. So Mrs. Pearson, जो कि now Mrs. Fitzgerald personality के हैं, सी व्हाट आई मीन डियर. सो जो मिसेस पियर्सन की बॉडी में है वहाँ मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल है, और जब वो देखती हैं कि उनका मैजिक काम कर गया है तो वो पियर्सन से कहती हैं कि देखो यही तो मैं समझा रही थी तुम्हें. शी नोटिसेस द सिगरेट, एंड वो देखती हैं कि जो सिगरेट है वो उनकी बॉडी में अभी भी है, उनके मुंह पे है, तो वो ले लेती है वहां से और कहती है हियर यू डोंट वांट दैट. शी स्नैचेस इट एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ पफिंग कंटेंटेडली. सो सेटिस्फैक्ट्री मैनर से वो सिगरेट को पीने लगती हैं. शी इज सेटिस्फाइड विद द चेंज दैट हैड occurred that moment. Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looks down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. सो जो मिसेस पियर्सन है जो अब फिट्जजेराल्ड की बॉडी में है, वो जब अपने आप को देखती हैं मिसेस फिट्जजेराल्ड की बॉडी में, वो चीख उठती हैं. शी गेव अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट. सो मिसेस फिट्जजेराल्ड विद पियर्सन्स पर्सनालिटी क्या कहती हैं? Oh, it has happened, मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली. अब यहाँ पर जो मिसेस पियर्सन है वो जो घबराई हुई है वो थोड़ा सा वरिड है. एंड सॉरी, यहाँ पर जो मिसेस पियर्सन है विद फिट्जजेराल्ड पर्सनालिटी वो बहुत सेटिस्फैक्शन में दिखाई दे रही हैं. ठीक है, तो क्लियर मैनर से कैजुअल मैनर में वो कहती हैं ऑफ कोर्स इट हैज हैपेंड. सो यहाँ पर अब जो मिसेस पियर्सन है वो कौन है एग्जैक्टली? मिसेस फिट्जजेराल्ड. और जो फिट्जजेराल्ड है वो यहाँ पर है मिसेस पियर्सन. सो इस तरह से यू नीड टू अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ बॉडी हियर. So Mrs. Pearson with Fitzgerald personality कहती है, of course it has happened. Very neat. Didn't know I had it in me. So she is surprised that still the magic she has not forgotten and it has worked out very well. Mrs. Fitzgerald alarmed. But whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and the children can't see me like this, and she is in a helpless situation. She is not able to understand what she is going to do, and she is worried about her husband and children, and she wants that they should not find her in such a situation. Mrs. Pearson grimly, they aren't going to. That's the point. They will have to deal with me. Only they won't know it. So, जो मिसेस पियर्सन है विद फिट्जजेराल्ड्स पर्सनालिटी वो एक्सप्लेन करती हैं द फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्हें मिसेस पियर्सन से डील करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फिट्जजेराल्ड है पियर्सन की बॉडी में, ओनली शी विल गो देयर एंड they will have to deal with her. So they are not going to know the fact that how they had changed their bodies and now who is actually in their house. So Mrs. Fitzgerald, she is again little alarmed. But what if we can't change back? It would be terrible. So Mrs. Fitzgerald, जो Mrs. Pearson है, she is little alarmed. She is worried कि क्या होगा अगर उनकी bodies वापस change नहीं होती हैं. Mrs. Pearson कहती हैं, steady Mrs. Pearson, if you had to live my life, it wouldn't be so bad. You would have more fun as me than you have had as you.
और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो मिसेस पियर्सन की बॉडी में है, वो कहती हैं कि आप मेरी लाइफ को एंजॉय करोगे एंड यू वुड हैव मोर फन। तुम अपनी लाइफ में जिस तरह से तुम एक जिंदगी जी रहे हो, एक बोरिंग सी लाइफ है, एक स्लेव की लाइफ जीती हो, यू विल एंजॉय लिविंग एज मिसेस फिट्जजेराल्ड। सो जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है, पियर्सन्स की पर्सनालिटी है, वो थोड़ा स्टेट ऑफ शॉक में है, उनके ये बिलीव करना मुश्किल है, वो कंफ्यूज्ड भी हैं कि अब वो क्या करेंगी, अब वो फैमिली मेंबर से डील कैसे करेंगी और क्या होगा अगर वो वापस अपने शरीर में नहीं जा पाएंगी। सो मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कहती हैं, मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, हियर स्टडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माय लाइफ इट वुडंट बी सो बैड, you would have more fun as me than you have had as you. मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, यस बट आई डोंट वांट टू बी somebody else. सो यहाँ पर मिसेस जो फिट्जजेराल्ड है, जो पियर्सन है, वो ये कहती हैं कि मैं किसी और की जिंदगी नहीं जीना चाहती। शी वांटेड हर लाइफ बैक। मिसेस पियर्सन कहती है, नाउ स्टॉप वरिंग, इट इज easier चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है, वेल डू इट नाउ। सो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो मिसेस पियर्सन है, वो चाहती हैं कि उनके जो है वो पुरानी अपनी बॉडीज में चले जाए। मिसेस जो फिट्जजेराल्ड है वो इस ट्रिक को, इस स्पेल को रिवर्स कर दें और वो अपने घर वापस जाना चाहती हैं। मिसेस पियर्सन विद फिट्जजेराल्ड पर्सनालिटी कहती है, नॉट लाइकली, I have got to deal with your family first. That's the idea, isn't it? Didn't know how to begin with them? You said, well, I'll show you. सो मिसेस पियर्सन विद फिट्जजेराल्ड पर्सनालिटी कहती हैं कि तुम्हें ये लग रहा था ना कि ये तुम कैसे शुरुआत करोगी, एंड नाउ इट इज नॉट पॉसिबल दैट आई एम गोइंग टू रिवर्स दिस मैजिक स्पेल। नाउ आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली, मीन्स अब मुझे तुम्हारी फैमिली से डील करना है। एंड शी हैड अ ग्रेट आइडिया इन हर माइंड, और वो कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें बिगिन कैसे करना है, सो आई विल शो यू फ्रॉम वेयर टू बिगिन। So this way, Mrs. Fitzgerald, she was actually trying to help Mrs. Pearson, and with this magic spell, she was now ready to do her part. So now she was ready to go back to Mrs. Pearson's house and treat the family members and bring them into disciplined life. So Mrs. Fitzgerald says, "But what am I going to do?" तो मिसेस फिट्जजेराल्ड विद पियर्सन जो है वो कहती हैं कि मैं तब तक क्या करूं। तो मिसेस पियर्सन एडवाइस करती हैं, गो इनटू माय हाउस फॉर अ बिट, देयर इज नोबडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, you ought to enjoy it, better get off now before one of them comes. सो मिसेस पियर्सन सजेस्ट करती हैं कि तुम मेरे घर चली जाओ, इससे पहले कि कोई आ जाए तुम वापस चली जाओ, और तुम थोड़ी देर बाद यू कैन कम बैक अगेन एंड सी हाउ वी आर डूइंग दैट, किस तरह से क्या घट रहा है और क्या इंप्रूवमेंट हो रही है फैमिली मेंबर्स के साथ, मैं कैसे डील कर रही हूँ, यू कैन कम बैक एंड सी इट एनी टाइम। Mrs. Fitzgerald nervously rising. Yes, I suppose that's best. You're sure it'll be all right? मिसेस फिट्जजेराल्ड जो अभी भी नर्वस हैं, वो जाते जाते फिर उससे कंफर्म करती हैं कि क्या वाकई आपको लगता है ये एक गुड आइडिया है और ये ट्रिक काम कर जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो मिसेस पियर्सन चकलिंग, और वो हंसती हुई कहती है, इट विल बी वंडरफुल, नाउ ऑफ यू गो माय डियर। सो वो उसे कंफर्ट करती हैं, उसे ये समझाती हैं कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, एंड शी विल रिवर्स द ट्रिक व्हेनेवर शी वुड आस्क, एंड फर्स्ट लेट हर डू द पार्ट्स दैट शी वांटेड टू। और वो भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। So Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door, right left to herself. Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette, and begins laying out the cards for patients on the table. सो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो वहां से चली जाती हैं, पियर्सन वापस स्मोक करने लगती हैं और वो कार्ड्स लेकर थोड़ा सा काम डाउन होने की कोशिश करती हैं टू जस्ट अडेप्ट टू द environment there. After a few moments, Doris Pearson comes bursting in left. She is a pretty girl in her early 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled. So हम क्या देखते हैं कि जो मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं, जब उनको मिसेस पियर्सन रीअश्योर करती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो वहां से चली जाती हैं। एंड उसी वक्त वहां पर डॉरिस जो है, जो डॉटर है मिसेस पियर्सन की, वो एंटर करती है।
एंड शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है मिसेस पियर्सन की, इन हर अर्ली 20s, बट शी इज़ अ स्पॉइल्ड ब्रैट, वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, राइट? So Doris enters before she has taken anything in. Taken anything in means without understanding what is going on there. She says, Mom, you'll have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. So Doris, she comes into the house in a hurried manner, and she even did not look at her mother at that moment. She just came and ordered her to iron her yellow silk. That is, yellow silk refers to the gown that she was going to wear that evening. And she informs the mother that she was supposed to go out that night. As soon as she notices her mother, she is left startled and goes towards her. So she now sees what is happening and is astounded. Astounded means startled, surprised. What are you doing? She moves down left center. Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. So, मिसेस पियर्सन का एटीट्यूड अब बदलाव आ चुका है क्योंकि वहां पर मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनालिटी है. सो उसका जो मैनरिज्म है फ्लटरिंग नहीं है, अपोलोजेटिक नहीं है, बट बहुत ही काम माइंड के साथ. इंसिसिव मीन्स यहाँ पर है शार्प एटीट्यूड. वो बहुत तीखे लहजे में बात करती हैं अपने बेटी से. तो वो कहती हैं, नॉट इवन लुकिंग अप, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सीलिंग. सो जब बेटी पूछती है कि क्या हो रहा है, तुम क्या कर रही हो, क्योंकि वो अपनी माँ को क्या करते देखती है, वहां पर स्मोक कर रही होती है. तो वो कहती है कि तुम क्या देख रही हो, मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं व्हाइट वॉश कर रही हूँ सीलिंग को. डॉरिस इज स्टिल astounded, बट यू आर स्मोकिंग. Mrs. Pearson, that's right, dear. No law against it, is there? Doris, but I thought you didn't smoke. Mrs. Pearson, then you thought wrong. So we see that how Doris is shocked because she thought that Mrs. Pearson doesn't smoke. So she says that Mrs. Pearson says, "That's right, dear. No law against it, is there?" Doris says, "But I thought you didn't smoke." Mrs. Pearson, then you thought wrong. And वो बड़ी ही straight manner में कहती हैं कि तब तुम ये गलत समझ रही थी. डॉरिस सवाल करती है, आर वी हैविंग टी इन द किचन? मिसेस पियर्सन सेज, हैव इट वेयर यू लाइक डियर. डॉरिस एंग्रीली, डू यू मीन इट इजंट रेडी? Mrs. Pearson, you isn't, yours isn't. I've had all I want. Might go out later and get a square meal at the Clarendon. So when Doris found that something was wrong there, she found her mother smoking, and the attitude, the way in which Mrs. Pearson was talking to her, she's a little upset, and she straight away asks her mother that if the tea was ready. And Mrs. Pearson, she says that she has taken her tea, and she tells Doris that she can take hers wherever she wants. And so Doris questions that whether the tea was not ready. So here we see that how Mrs. Pearson says that yes, yours isn't. I have had all I want. And she also informs Doris that she could go out to get a square meal. Square meal कहते हैं a one satisfying meal, कि एक मन भर के खाना जो वो खाना चाहती थी at the Clarendon. So she wanted to go out that evening and have a great meal there. So वो डॉरिस को इन्फॉर्म करती हैं that the tea is not ready. She had taken her tea and there is none ready for Doris. And then she shares that she might go out for a meal at the Clarendon. Doris, it is very hard to believe, and she asks her who might. वो कंफर्म करना चाहती हैं कि उसकी जो मदर है वो किसकी बात कर रही हैं, कौन बाहर जाकर खाना चाहता है. Mrs. Pearson says, I might. Who do you think? Doris, staring at her. Mum, what's the matter with you? Mrs. Pearson says, Don't be silly. So it is really very hard for Doris to believe. She's a bit more shocked when she confirms from her mother that who would go out for a meal. And Mrs. Pearson, she again tells her that she might go out for a meal. She's talking about herself only. So Doris senses that there is something wrong and asks Mrs. Pearson what's gotten onto her, कि क्या प्रॉब्लम है उनके साथ, कोई गड़बड़ है क्या. सो मिसेस पियर्सन कहती है, डोंट बी सिली, कि स्टूपिड जैसी बातें मत करो.
डॉरिस इंडिग्नेंटली, डॉरिस थोड़ा गुस्से में है अब। वो कहती हैं, इट इज नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, एंड आई मस्ट से इट इज अ बिट मच when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? So, thinking that it is unfair, she exclaims that she is not being foolish. She thinks that it is hard to take that she has been working hard, and when she comes home tired, she cannot even expect a cup of tea. So she again asks Mrs. Pearson if she heard the instructions about her येलो सिल्क। सो वो अपनी माँ से कंफर्म करती हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपने मेरे लिए चाय भी रेडी नहीं की है, लेकिन क्या आपने मेरी बात सुनी जो मैंने आपको अपनी येलो सिल्क ड्रेस के बारे में कही? मिसेस पियर्सन कहती हैं, नो, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। So Mrs. Pearson refuses to have heard anything about her dress, and she asks Doris if she now likes being treated like how they have been treating Mrs. Pearson. So, don't you like it now? I never did. So वो कहती हैं कि किस तरह से जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स हियर, जो वो कहती हैं कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें अचानक वो ड्रेस कैसे पसंद आ गई? आई नेवर डिड। डॉरिस कहती हैं, ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट, सो आई वांटेड इट आयरन। सो मिसेस पियर्सन उससे कहती हैं कि तुम्हारी येलो सिल्क ड्रेस तो तुम्हें कभी खास पसंद नहीं थी, अचानक कैसे तुम्हें वो पसंद आ गई? डॉरिस कहती है कि यस ऑफ कोर्स मुझे वो पसंद है, एंड मैं वो ड्रेस आज रात पहनने वाली हूँ, एंड इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे आयन करें। मिसेस पियर्सन कहती है, वांट इट आयन? व्हाट डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डू? आयन इटसेल्फ? नाउ यू सी द सरकाजम पुट हियर बाय मिसेस पियर्सन। वो कैसे डॉरिस को कहती हैं कि वो क्या कहना चाहती है कि ड्रेस आयन करो, क्योंकि वो कहती हैं कि वो तो ड्रेस आयन करने वाली नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ड्रेस अपने आप आयन कर लेगी अपने आप को? एंड इन अ वे शी इज ट्राइंग टू टेल her daughter that she was not going to iron the dress, and Doris, she needs to iron it herself. डॉरिस वहां पर थोड़ा सा गुस्से में है और वो अपनी मदर को एक तरह से ऑर्डर देते हुए कहती है, नो, यू आर गोइंग टू आयन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। सो डॉरिस जो है, शी टेल्स हर मदर दैट शी वांट्स मिसेस पियर्सन टू डू इट लाइक शी ऑलवेज डज द वर्क। तो जैसे वो हमेशा उसके कपड़े आयन करती हैं, वो आज भी करेंगी। मिसेस पियर्सन कहती है, वेल दिस टाइम आई डोंट। अगेन इन अ वेरी ब्लंट मैनर शी रिफ्यूजेस टू डू द वर्क, और वो कहती हैं कि दिस टाइम आई डोंट, एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, डॉरिस पियर्सन। और वो अपनी बेटी से कहती हैं कि जो हार्ड वर्क करने की बात है उसकी तो तुम बात ही मत करो, मुझे क्लियर आइडिया है कि तुम कितना हार्ड वर्क करती हो। एक्चुअली शी इज मेकिंग एन आयरॉनिक रिमार्क कि उनकी बेटी कुछ खास हार्ड वर्क नहीं करती है। एंड वो कहती हैं कि आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू एंड गेट नो वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट। व्हाई आर यू गोइंग टू वेयर येलो सिल्क? वेयर आर यू गोइंग? सो वो डॉरिस से कहती हैं कि वो उनसे ज्यादा काम करती हैं, वो 24/7 घर पे रहती हैं और सारे घर के काम को करती हैं। शी कंप्लीट्स ऑल द हाउस होल्ड चोर्स एंड शी डज इट परफेक्टली 24/7। शी हैज नेवर कंप्लेन्ड इन हर लाइफ एंड शी हैज नेवर बीन थैंक्ड फॉर दैट। सो शी गेट नो वेजेस नॉर थैंक्स फॉर इट, कि उनको इस काम की कोई सैलरी नहीं मिलती है और इन रिटर्न कोई थैंक यू भी नहीं बोलता है। और ये बात कह के वो अपनी बेटी से ये जानना चाहती हैं कि वो येलो सिल्क क्यों पहनना चाहती है और वो कहाँ जा रही है। सो डॉरिस जो है, सल्कली आउट विद 40 पेंस। सो सल्कली मीन्स शी इज इन अ वेरी डिसएग्रीएबल मूड, वो अपसेट मूड में है, और वो कहती हैं कि वो 40 पेंस के साथ जाना चाहती हैं। 40 पेंस जो डॉरिस का फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ बाहर घूमने जाना चाहती है। मिसेस पियर्सन कहती हैं, व्हाई? डॉरिस इज नाउ वाइल्ड एंड शी क्वेश्चंस हर, व्हाई व्हाई, कि आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? What's the matter with you? Why shouldn't I go out with Charlie's pence if he asks me and I want to? एंड वो अपनी मदर से कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? 40 पेंस ने उसे बाहर जाने के लिए पूछा है, और अगर वो जाना चाहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?
एनी ऑब्जेक्शंस? तो वो पूछती हैं कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, देन गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, कि तुम मुझे अपनी बता सकते हो, आपको कोई ऑब्जेक्शन है. बट शी वुड डेफिनेटली गो आउट विद चार्ली स्पेंस. So, students, today we are going to stop here. We'll continue the rest of the chapter in the next session. So, keep reading. Have a nice day.